Welcome back, students. Today, the very important topics, right? Operators in Java. That actually it is the topic of class 9, but in class 10, in output based question, if you will see, then 5 to 10 marks. The question will be there from this operator that today I am going to discuss, right? So, if you will see, what is operator? So, operator is nothing, students, is just a symbols, right? To perform operation on variables and values. एक ऐसा ऑपरेटर जो किसी भी सिंबल्स के साथ काम करता हो, ठीक है, वो वेरिएबल्स हो सकता है या उसका वैल्यूज हो सकता है। वेरिएबल कहने का मतलब हुआ यहाँ पे कि a प्लस बी, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज, सो 4 + 3. So we can add, we can manipulate, we can perform some operations on variables and values. So that is the operators. Some types of operators are there. The basic types that we know, arithmetic operator. ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर द पहला ऑपरेटर होता है और अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन सा, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होता है, ये तुम लोग को अच्छे से पता है। द फर्स्ट, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एस्टरिस्क we say this, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, राइट। सो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज होता है। ये रिटर्न जो करता है ना, ये क्वेश्चन रिटर्न करता है, एंड दिस वन इज गोइंग टू रिटर्न रिमाइंडर एज आई हैव रिटर्न ऑलरेडी हियर, राइट। Now, this plus, minus, multiplication, you very well, this modulus. Suppose I will write here, student, don't be confused here. See, if I will write 7 by 3, what will be the answer? 7 by 3. What will be the answer? You will say, so 3 to the 6 and 2 point something, right? You will write 2 point something. A student, in this division, after this decimal, we don't write anything. So the base only we will write. What will be the answer? 7 by 3. 7 by 3, the answer will be 2. Don't be confused on that, right? But if I will write 7 modulus 3, 7 modulus 3, the answer will be 1. Why answer will be 1? Because if you will divide 7 by 3, if you are going to divide this 7 by 3, then 7 to the 6, and what remainder you are going to get? Remainder is 1. So that will be the answer. Getting or not? The point is clear? Yes. Now, see this one. If another example I will take. For example, I have taken, for this division, I have taken 3 by 7. Just suppose it. 7 by 3, you have seen it will be 2. 7 modulus 3, it will be 1. But if I have taken 3 by 7, so 3 by 7 means if you are going to divide 3 by 7, you need to take first 0 and then point. So what will be the answer? 0 will be the answer. Why? Because it's not divisible by 7. But if you will see 3 modulus 7, student, if you will see 3 modulus 7, what will be the answer? The answer will be 3 itself, because 3 is not divisible, that's why it is remainder. No, I hope it is clear to you. अर्थमेटिक ऑपरेटर में कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ो, आगे देखो। a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 3 है, सो a प्लस b, यू नो हाउ टू यूज, द आंसर विल बी 13. a by b, so a by b means 10 by 3. The 10 by 3 means 3 3s are 9, so answer is 3. A modulus b, if you will write here 10 modulus 3, so 3 3s are 9, what is the remainder? 1, so your answer is 1. So like this example I given to you here, so that it will be in your mind, right? Understood? Now, points to remember, points, some important points to remember. So integer division and decimal division, both are different, okay? So you just prepare it before it. Modulus mostly used in the output questions, output based question, like for with the unary operator, ये हमेशा unary operator के साथ it will work, okay? Now operator precedence applies. Operator precedence later on I will discuss, okay? That first what will going to execute. अगर हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस इतना का बात करें, ये तो याद रखना है तुम लोग को क्या, कि अगर हम बात करें मॉड्यूलस और मल्टीप्लाई,
स्लैश और मॉड्यूलस का बात करें तो इसमें अगर हम तुमको बोलेंगे कि सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, तो याद रखना ये लेफ्ट टू राइट जो पहले आएगा। अगर पहले मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लाई होगा, पहले डिवीजन आया तो डिवीजन होगा, पहले मॉडुलस आया तो मॉडुलस आया, लेकिन ये तीनों में ही। लेकिन अगर प्लस रहा और मल्टीप्लाई रहा तो याद रखना बाबू पहले मल्टीप्लाई होगा। और अगर माइनस रहा और डिवीजन रहा तो याद रखना पहले डिवीजन होगा, बाद में ये माइनस होगा। क्यों? क्योंकि वो अलग लेवल का है, ठीक है। प्लस और माइनस हमेशा ये तीनों के बाद आएगा। प्लस और माइनस ये हमेशा ये तीनों के बाद आएगा। लेकिन अगर ये तीनों तुमको दिख गया एक्सप्रेशन में तो याद रखना विच विल कम फर्स्ट दैट विल बी डन फर्स्ट, ठीक है। विच विल कम फर्स्ट दैट विल बी डन फर्स्ट, हमेशा याद रखना है इसको। अब आगे चलो नेक्स्ट टॉपिक पे, रिलेशनल ऑपरेटर, इसका दूसरा नाम कंपैरिजन ऑपरेटर भी है, ठीक है। यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, हमेशा दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करने का काम करता है। कौन सा? कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें क्या आ गया? तो लेस देन आ गया, ग्रेटर देन आ गया, लेस देन इक्वल टू आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, इक्वल टू आ गया, है ना। इसको दो बार बोलते हैं, इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल टू आ गया। यू नो दिस इज गोइंग टू गिव यू ओनली ट्रू and false. If the condition will be true, then you will get the true, otherwise you will get false. But what is the difference between this equals to and one equals to? ये हमेशा याद रखना है तुम लोग को, ठीक है। कि ये इक्वल्स टू जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये अगर हम लिख रहे हैं x इक्वल्स टू 5 लिखे, सो दिस 5 विल गेट स्टोर इन x, मीन्स द वैल्यू ऑफ राइट विल गेट स्टोर इन लेफ्ट। बट अगर हम लिखे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5, तो वह क्या होगा यहाँ पे? तो ये वैल्यू ऑफ x विल बी कंपेयर्ड विथ 5। अगर दोनों इक्वल हुआ तो ट्रू रिजल्ट देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। हमेशा याद रखना है इसको, ठीक है। ये इक्वल टू और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, if two values are not equal then this will give you true, otherwise you will get false. Some example I have given for you, a is 5, b is 10। अब यहाँ a लेस देन b, तो अगर a लेस देन b है तो देखो तो 5, पहले तो वैल्यू प्लेस कर दो उसमें। ए के जगह पे क्या? 5, बी के जगह पे क्या? 10। ड्राई रन जरूरी है बाबू, है ना। ड्राई रन यू हैव टू डू फॉर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। तो 5 क्या छोटा है 10 से? बिल्कुल है सर, तो ट्रू हो जाएगा आंसर। ए इज इक्वल्स टू बी, क्या 5 बराबर है क्या 10 का? नहीं सर, यहाँ बराबर नहीं है। 5 इज नॉट इक्वल टू 10, तो आंसर फॉल्स आएगा। तो हमेशा याद रखना कि ये जो वेरिएबल, ये जो ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर, इज ऑलवेज रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स। अब आगे देखें हम लोग, रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स, ये हमेशा याद रखना पॉइंट। और डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू ये भी तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। कि ये सर ये रिलेशनल ऑपरेटर है, और ये जो इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब आगे देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर, तीन तरह का लॉजिकल ऑपरेटर होता है जो मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करता है। लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो ये हमेशा रिलेशनल के साथ काम करेगा और दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करता है, ठीक है। जैसे कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी एक कंडीशन हुआ, और एक और कंडीशन चाहिए तो एंड के साथ हम लोग लगा दिए, फिर या और के साथ लगा दिए, बी ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे दो कंडीशन, दोनों कंडीशन को कंबाइन कौन किया? तो लॉजिकल ऑपरेटर। तो हमेशा याद रखना लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। तीन तरह का लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एंड, और, एंड नॉट। अब यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन तेरा बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि अगर ये तीनों ऑपरेटर दिया हुआ है, एंड भी दिया हुआ है, ठीक है, और भी दिया हुआ है, और नॉट भी दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन करेगा? तो याद रखिएगा बाबू, सबसे पहले नॉट एग्जीक्यूट करेगा। फिर पहला नंबर में नॉट आ गया, दूसरा नंबर पे, पहला नंबर पे नॉट आ गया, दूसरा नंबर पे एंड आ गया, और तीसरा नंबर पे और आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया तेरा, और ये तीसरा नंबर हो गया तेरा। हमेशा याद रखना कि अगर तीनों ऑपरेटर साथ में यूज हुआ तो सबसे पहले एग्जीक्यूट क्या करेगा, ठीक है। तो पहले नॉट, फिर एंड देन और। अब आगे बात करें, इंट ए इक्वल्स टू 10। एक एग्जांपल दे दिए तो लोग समझ लेना इससे, ठीक है। ए ग्रेटर देन 5, तो बिल्कुल 10 इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि ए का वैल्यू 10 है हमारे पास, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन ट्रू। और
10 इज लेस देन 15। बिल्कुल सही है सर, 10 तो छोटा है ही 15 से, तो यहाँ भी ट्रू हुआ। तो हमेशा याद रखना कि एंड में जो होता है, अगर दोनों कंडीशन सही हुआ या दो से ज्यादा कंडीशन जितना दिया हुआ है, अगर सारा कंडीशन सही हुआ तो वो रिजल्ट ट्रू देगा। अगर एक भी गलत हो गया, एक भी कंडीशन गलत हो गया, तो हमेशा रिजल्ट वो गलत देगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। नॉट में देखो, 10 is greater than 20, no sir, false। when it is false, then what not will do, not हमेशा रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। ठीक है, नॉट हमेशा रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। अगर ट्रू है तो ये रिजल्ट क्या कर देगा, रिजल्ट ये कर देगा फॉल्स। याद रखेगा इसको, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अगर नॉट, अगर और क्या करता है कि अगर मल्टीपल कंडीशन है, और मल्टीपल कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाता है ना, तो और विल गिव यू ट्रू। बट एंड क्या करता है कि मल्टीपल कंडीशन है लेकिन एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स रिजल्ट दे देगा। ठीक है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। अब चलो, तो ये अगर हम इसका तुमको रिजल्ट पूछे कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, हाउ यू विल सॉल्व इट, ओके, यू कमेंट में, ओके, इन द कमेंट लाइन। I will not going to explain this, okay? You do this. Now, truth table, याद रखना इसको, use with the relational operators, ठीक है? और रूल याद रखना, पहले नॉट, सेकंड में एंड, और थर्ड में और। हिंट दे दिए हैं इसको करने के लिए। So you do it and tell me the answer. नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर का बात करें, तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर पढ़ते हैं, हम लोग का बुक में दिया हुआ है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। सो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर इज नथिंग बट असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट? सो इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, मॉडुलस इक्वल्स, स्लैश इक्वल्स टू एंड मॉडुलस इक्वल्स। एक प्री बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा था कि 7 मॉडुलस 18, है ना? सब कंफ्यूज, कोई 4 लिख दे रहा है आंसर, कोई और कुछ लिख दे रहा है। अरे बाबू, 7 डिविजिबल नहीं है 18 से, इसीलिए तो आंसर 7 हो जाएगा ना इसका। अगर 17 भी रहता ना, अगर 17 मॉडुलस 18 रहता, तब भी आंसर क्या आता हमारा, 17 आता, क्योंकि 17 स्टिल नॉट डिविजिबल बाय 18, राइट? तो 18 से जितना छोटा हुआ, अगर उसको डिवाइड कर रहा है तुम, तो हमेशा याद रखना, इट विल बी गिविंग यू द आंसर दैट ओनली फ्रॉम इच नंबर, राइट? नाउ ये तो सारा क्लियर है। अब देखो, a इक्वल्स टू 5 है, a प्लस इक्वल्स टू 3 दे दिए, तो a प्लस इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या हो गया, a इक्वल्स टू a प्लस 3। तो a प्लस 3 हुआ, तो a का वैल्यू 5 है, और 5 प्लस 3, आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। a मॉडुलस इक्वल्स, a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2, तो फिर से a का वैल्यू क्या है, 5, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब तो 8 हो चुका है ना। इसके बाद अगर हम आगे आगे यहाँ पे आए, तो a का वैल्यू क्या हो चुका है, 8, तो 8 इंटू 2, आंसर क्या आ जाएगा, 16। अगर दोनों को एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमको, 8 मिलेगा और 16 मिलेगा। याद रखना इस चीज को, ठीक है? याद रखेगा इसको। अब आगे बढ़ो, यूनरी ऑपरेटर, इसके बारे में आज ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि तुम लोग तो पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और अगर बताना होगा तो इसको अलग से टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है? प्लस प्लस इंक्रीमेंट, माइनस माइनस डिक्रीमेंट, राइट? प्लस प्लस हम लोग ऑपरेंड के पहले भी लगा सकते हैं, जैसे एक ए और बी रहा, ठीक है ना? तो ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेंड, बी को भी क्या बोलते हैं, ऑपरेंड, और इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। तो ऑपरेंड से पहले अगर ऑपरेटर लगा दिए तो वो प्री इंक्रीमेंट हो गया या प्रीफिक्स हो गया। ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर लगाया तो पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स हो गया। प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है? बस इसको याद रखेगा, ठीक है? ए का वैल्यू 5 है, तो प्लस प्लस का मतलब तुम लोग को पता ही होगा, प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, +1, और माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, -1, ठीक है? सो व्हेन यू आर गोइंग टू डू a प्लस प्लस, बट ये तो क्या है, पोस्टफिक्स है ना, तो पोस्टफिक्स में क्या होता है, हमेशा याद रखना कि पहले असाइनमेंट, यानी कि ये पहले प्रिंट कर देगा वैल्यू को, तो वैल्यू प्रिंट हो गया, ए का वैल्यू क्या हो गया, 5, 5 प्रिंट हो गया। अब फिर प्लस प्लस, लेकिन ये इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, ए का वैल्यू 6 हो चुका है, बट प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट हमेशा ये 5 करेगा। क्यों 5 करेगा, क्योंकि इसका एक रूल है कि अगर पोस्ट फिक्स रहा तो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन और फर्स्ट असाइनमेंट एंड देन इंक्रीमेंट।
तो ए का वैल्यू प्रिंट हो गया, बाद में ए का वैल्यू बढ़ा तो आंसर 5 आया। बट यहाँ पे आंसर 7 आ रहा है, क्यों? क्योंकि 6 ऑलरेडी हो चुका था, और 6 पहले क्या किया, इंक्रीज किया, बाद में प्रिंट किया। तो इंक्रीज करने के बाद प्रिंट किया, तो ए का वैल्यू क्या था, 6 था, और एक और इंक्रीज हो गया 7, तो 7 प्रिंट कर दिया। याद रखना इस चीज को, ठीक है। Very important output based question here. Two question will be there from the unary operator. You practice it, okay? And the very important topic, ternary operator, also known as if else. If else का अगर हम short form बोले तो क्या है, question marks और colon. तो conditional operator is also known as ternary operator, okay? Ternary operator is indicated by question marks और colon. Ternary operator जैसे दिमाग में आया समझ लेना क्यों, इफ एल्स का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो पहले अगर कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। हमेशा याद रखना है इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया देखो कि ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 20, नो, तो विच वन विल एग्जीक्यूट, बी विल एग्जीक्यूट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी इज 20, 20 विल गेट प्रिंटेड, राइट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आउटपुट बेस आ ही सकता है, इसको बोलेगा इफ एल्स में कन्वर्ट करो। तो हमेशा याद रखना बाबू, क्वेश्चन मार्क्स जहां पे रहा ना, क्वेश्चन मार्क्स वहां पे इफ लगा देना, ठीक है। और जहां पे ये कॉलन दिखा वहां पे एल्स लगा देना। कैसे? तो देखो क्वेश्चन मार्क्स के अपोजिट में इफ रहेगा, तो पहले इफ लगा, इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब क्या है, ए को स्टोर कर रहा है, किस में स्टोर कर रहा है, तो ए को तो मैक्स में ही स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो मैक्स इक्वल्स टू ए। अब क्या बोले थे, ए यहां तक हो चुका है, देखो ए तक हो चुका, अब क्या है, कॉलन, कॉलन का मतलब क्या बोले थे कि एल्स लगा दो, तो एल्स लगा यहाँ पे, एल्स एम इक्वल्स टू बी। तो हमेशा याद रखना, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन मार्क्स रहेगा उस जगह पे हम लोगों को इफ यूज करना है, और जहां पे भी कॉलन दिखेगा उस जगह पे तुमको एल्स यूज करना है, ठीक है। तो कन्वर्जन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, लास्ट पॉइंट, दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू रिमेम्बर इट, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर इवेलुएटेड। तो हाई प्रायोरिटी याद रखना, सबसे पहले ब्रैकेट, जैसे मैथ्स में बोर्ड मास तो लोग पढ़ते हैं, बोर्ड मास यहाँ पे फॉलो नहीं करता क्योंकि ये उसको फेल कर दे रहा है, ये वाला लाइन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉडुलस अगर रहा तो इसमें जो पहले आएगा वही एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ब्रैकेट रहा तो पहले ब्रैकेट, प्लस प्लस माइनस माइनस और नॉट रहा तो ये सबसे पहले होगा, ठीक है। इसमें भी जो पहले आ रहा है वही होगा, याद रखना, इसमें भी जो पहले आएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, और इसमें जो पहले आ रहा है वो होगा। यहाँ पे भी जो पहले आएगा वही होगा, प्लस और माइनस में। रिलेशनल ऑपरेटर एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर तो पहले बोल चुके हैं कि पहले नॉट होगा, बाद में एंड होगा, ठीक है, और लास्ट में और होगा। और असाइनमेंट ऑपरेटर तो सबसे लास्ट में होता ही होता है। एक एग्जांपल दिए हुए यहाँ पे देखो, जैसे मैथ्स में करना है तो 2 × 3 6, 6 + 5 11 इज द आंसर, राइट। तो ये याद रखना है तो लोग, ठीक है। एग्जाम टिप्स, फोकस ऑन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये करना ही करना है तो लोग को। एंड रिवाइज ऑपरेटर प्रेसिडेंस डेली, ऑपरेटर प्रेसिडेंस को एक बार डेली तो लोग जहाँ पे पढ़ते हैं वहां पे चिपका के रख दो कि क्या है ये, ठीक है। सो माई लाइन, लर्न लॉजिक नॉट जस्ट सिंटेक्स। लॉजिक अगर समझ में आ गया तो अपने आप सारा सिंटेक्स हो जाएगा काम, ठीक है। और अब वो तुम लोग के लिए है विदाउट आंसर top 20 operator questions. You have to do this and you have to give me the answer. You type in the comment line all the answers at one place, okay? Give total 20 questions are there. You practice it. Practice it, okay? One by one, I'm opening here so that in video you will get 10, 11 number, 12 number, 13 number, 14 number, 15 number, 16 number, 17, 18, 19 एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ड्राई रन करके हमको अच्छा से करके दिखाना है तो लोग, ठीक है। ड्राई रन करना है, कॉपी में सारा क्वेश्चन लिख के रखेगा तो लोग, ठीक है, ड्राई रन। सो दिस क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, सो 20 हॉट क्वेश्चंस विल बी विथ यू
Practice it, okay? And give me the answer. Any doubt? You ask. Increment is sure short one question will be there. Integer division trap student. So integer division तुमको पहले बोल चुके हैं कि 7 को 2 से डिवाइड कर देगा, 2 को 7 से डिवाइड कर देगा। तो ये तुम लोग को क्लियर होना चाहिए, ठीक है? क्या आंसर होगा? जैसे 7 को 2 से तो 3 आंसर हो गया, 2 को 7 से तो 2 आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि 2 डिविजिबल नहीं है 7 से। लॉजिकल प्रोग्रेशन कॉम्बो इज द बोर्ड फेवरेट। ड्राई रन फुल मार्क्स के ड्राई रन करना है तभी फुल मार्क्स मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, I hope you understood the operators.